welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Rudma Goyal. As I have started with a series on the international law, and in this series I have discussed many important questions relating to the international law, which are important to the examination point of view. Today in this video I am going to discuss one more important question that is relating to international law, that is laws of war, and that is generally asked in the exams for 20 marks. This is the what define the term war and also define the rules relating to the aerial war as well as land warfare or the maritime war. So this is our question. If we talk about the term war, when a dispute between the states is not settled even by using the coercive means, then they may resort to war. And it is the last option and the ultimate mean of the settling the international dispute. Laws of war under the international law offers a set of permissive as well as non-permitted acts to all the stakeholders involved therein the conflict. And laws of war is an essential component of international law that regulates the conditions for initiating the war, that is jus et bellium, and conduct by the hostility, that is jus in bello. So if we talk about the term war, until the 20th century, there existed no principles of the international law that limited the rights of the states to go to war. At the time, war was seen as a matter of internal part of the state sovereignty to be entered into for political reasons. As I have discussed two terms, that is jus in bello and justice bello. Bello means right to war, and while the term jus in bello means justice in war. If we talk about the term jus et bellium, this means laws governing whether the states may resort to war, and laws governing how a state may conduct the war, that is discussed in jus in bello. And when a state has right to war, that is known as jus et bellium. If we talk about what the laws are the governing how a state may conduct a war, what is just and what is unjust during the war, that is considered under jus in bello. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वार की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, तो जो युद्ध होता है दैट इज द लास्ट ऑप्शन किसी भी देश के लिए अंतिम उद्देश्य होता है जब शत्रु देश पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, जहां पर आप अलग अलग जो तरीके आप डिस्प्यूट को सेटल करने के बताए गए थे, जब आप उन्हें अपना लेते हैं, उनको अपनाने के पश्चात आपको यदि ये लगता है कि वहां पर अब कोई तरीका नहीं बचा है, तो दैट मीन्स वार इज द लास्ट ऑप्शन दैट मे टेकन इन ऑर्डर टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट. जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध में जान माल की हानि होती है और इसके अलावा दोनों पक्षों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार बल का प्रयोग किया जाता है, परंतु युद्धरत देश अपनी मनमानी नहीं कर सकते. ये कहा जाता है कि जो युद्धरत देश होते हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उसके संबंध में उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन युद्धरत देशों को करना पड़ता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उन नियमों का पालन करें, उनका उल्लंघन न करें. युद्ध के नियम मानवीय मूल्यों एवं हितों पर आधारित होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो प्रोफेसर हॉल जी के अनुसार जब राज्यों के बीच मतभेद इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि दोनों पक्षकार शक्ति का प्रयोग करते हैं या उनमें एक हिंसा का प्रयोग किया जाता है और दूसरे के द्वारा शांति का उल्लंघन माना जाता है, तो युद्ध का संबंध स्थापित हो जाता है. तो इसका मतलब युद्ध का मतलब क्या हुआ कि जब राज्यों के बीच मतभेद इस एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक दूसरे के प्रति शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दें, और वो जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है वहां पर वो जो दूसरा देश है उसको उसका शांति का उल्लंघन मानेगा और वहां पर वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है हिंसा के जरिए. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोफेसर स्टोर्क, यदि हम स्टोर्क जी की परिभाषा को देखते हैं तो स्टोर्क जी ने क्या कहा था, युद्ध सामान्यतः मुख्य रूप से दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है और प्रत्येक युद्धरत देश का उद्देश्य होता है कि वे एक दूसरे को हरा दे और शांति के लिए अपनी शर्तों को मनवा ले. इफ यू टॉक अबाउट द सर्टेन अदर डेफिनेशंस ऑफ वार, यदि हम और डेफिनेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि प्रोफेसर ओपनहाइम जिन्हें युद्ध की परिभाषा के हिसाब से युद्ध का मुख्य उद्देश्य है विपक्षी को पुरंतिया अपनी शर्तों को मनवाना कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर होइम कि जो युद्ध का जो मेन पर्पज होता है वहां पर वो विपक्षी पार्टी को अपनी शर्तों को मनवाना चाहता है उसके जरिए, युद्ध के जरिए. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोफेसर डेफिनेशन रूसो,
प्रोफेसर रूसो डेफिनेशन, दैट इज दो राज्यों के बीच शक्ति का परीक्षण ही युद्ध है। उन्होंने क्या कहा कि दो राज्यों के बीच में जब वो आपस में शक्ति का परीक्षण करते हैं और उसके जरिए अपनी बातों को मनवाते हैं, उसे ही युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे देर आर अदर सर्टेन डेफिनेशंस आल्सो, इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो जब हम युद्ध की बात करते हैं तो क्या जो युद्ध है, क्या उसकी औपचारिक घोषणा करना अनिवार्य है? क्या ये जरूरी है कि वेदर देयर में बी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द वार बिफोर इनिशिएशन ऑफ द वार? क्या ये जरूरी है कि वहां पे डिक्लेरेशन किया जाना चाहिए? इसके संबंध में आप देखेंगे तो अलग अलग देश की अलग अलग उनके विचार देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में भी युद्ध को पूर्णतः अग्रदूतों द्वारा युद्ध की पूर्व घोषणा की जाती थी। आपने पहले देखा होगा, जब पुराने जमाने में जब पुरानी कथाएं देखी होंगी, उनके अंदर ये देखा जाता था कि भी जब कोई युद्ध की बात आती थी तो वहां पे पहले उसकी घोषणा की जाती थी कि हम तुम्हारे पे आक्रमण करने वाले हैं। और जनरली आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी ये कहा जाता है कि युद्ध की पूर्व घोषणा होनी चाहिए। दैट इज असेंशियल टू डिक्लेयर द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द वार बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द वार, ये कहा जाता है। एज पर हेग कन्वेंशन, यदि हम हेग कन्वेंशन की बात करते हैं तो युद्ध की पूर्व घोषणा करना अनिवार्य है, परंतु इस सिद्धांत के सार्वभौमिक रूप को मान्यता नहीं मिल सकी है। इसको मतलब सभी देशों द्वारा कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। यदि हम बात करते हैं युद्ध की संधियों की, तो युद्ध आपने देखा होगा कि 1904 में जापान ने रूसों के बड़े बेड़े पर बिना घोषणा किए युद्ध आरंभ कर दिया था। ये मैं आपको बता रही 1904 की बात, जहां पर जापान ने रूसी बेड़े पर बिना घोषणा किए युद्ध को आरंभ कर दिया था। बिफोर विदाउट एनी प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ द वार जापान हैज अटैक्ड रूस, तो जापान ने रसिया पे अटैक कर दिया था। तो आप देखेंगे उसके बाद बहुत सारी ऐसी संधियां आई हैं जो 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे, जो यहाँ पे युद्ध के संबंध में संपर्क स्थापित करने के संबंध में कई संधियां स्थापित की गई थी कि वहां पे उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे इस संबंध में कोई संधियां जैसे आप ले सकते हैं पेरिस डिक्लेरेशन, जिनेवा कन्वेंशन, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, रेड क्रॉस जिनेवा कन्वेंशन, जिने तो दीज आर सर्टेन कन्वेंशन विच आर रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ द वार, जो वार से संबंधित हैं। If we define the certain definitions given by various jurists of the term war, according to Professor Oppenheim, war is a contention between two or more states through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pledges. This is the definition given by Professor Oppenheim. If we talk about the second definition, that is given by Professor Stark. Professor Stark defined the war as war in its most generally understood sense was the contest between the two or more states, primarily through their armed forces. The ultimate purpose of each contestant or each contestant group being to vanquish the other or the others and impose its own conditions of peace. This is the main definition of the war which are given by certain jurists. If we talk about the war, यदि हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं कि वार के लिए कौन कौन से तत्वों का विद्यमान होना जरूरी है, तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट मस्ट बी अवेलेबल इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द वार। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वार चल रहा है, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, दैट इज वार इज ए कंटेंशन। वार जो वो कंटेंशन है, ना कि अग्रेशन है। कंटेंशन मीन्स वायलेंट स्ट्रगल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उनके आर्म फोर्सेस का यूज करते हुए वो कहीं ना कहीं फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अग्रेशन। तो दिस मीन्स वी कैन से दैट वार इज ए कंटेंशन वेयर देयर इज वायलेंट स्ट्रगल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम अग्रेशन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड एलिमेंट ऑफ वार, दैट इज वार के अंदर जो कंटेंशन की जा रही है, दैट मस्ट बी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। दिस मीन्स कंटेंशन मस्ट बी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स एंड दिस एलिमेंट डिस्टिंग्विशेस वार फ्रॉम द सिविल वार। यदि हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वार मैंने वर्ड बोला है, यहाँ पे वार जो शब्द होता है ये सिविल वार से अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब सिविल वार की आप बात करते हो तो सिविल वार का मतलब एक ही देश के अंदर अलग अलग जो पार्टीज होती है उनके बीच में कहीं ना कहीं वार चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, वो होता है सिविल वार। जबकि हम वार की बात करते हैं तो वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर चलता है। तो जैसे कि मैंने को बताया कि वार इज ए कंटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। वार एक कंटेंशन है जो दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय डेफिनेशन सर्टेन जूरिस्ट।
तो जैसे कि मैंने आपको पहला एलिमेंट बताया, वार इज ए कंटेंशन। सेकंड एलिमेंट मैंने आपको बताया, कंटेंशन मस्ट बी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। थर्ड इज वार इज ए कंटेंशन बिटवीन स्टेट्स थ्रू देयर आर्म्ड फोर्सेस। यदि हम वार की बात करते हैं तो वार कंटेंशन तो है, परंतु वहां पे क्या हो रहा है कि आर्म फोर्सेस के थ्रू हो रहा है वो कंटेंशन। तो वार इज ए कंटेंशन थ्रू द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि वहां पे जो कंटेंशन किया जा रहा है वो आर्म फोर्सेस के थ्रू किया जा रहा है, वहां पे आर्म फोर्सेस का यूज करके कंटेंशन की जा रही है। तो these are the certain elements which are essential to constitute a war. If we talk about the declaration of the war, war की क्या घोषणा करना जरूरी है? Declaration of the war by the state is an evidence of the state of war with the another state. भाई यदि आप घोषणा करते हैं किसी भी वार की तो वहां पे that is an evidence of the state of war with the another state. If we talk about the Professor Grotius says that the declaration of the war is essential for its commencement. In the 18th and 19th century, this rule was not followed by many states in many wars. But now the rule has changed. Now it was the almost taken for the granted that some sort of information or the intimation, ultimatum must be given before the commencement of the war. जब भी कोई वार शुरू होती है तो वहां पे एक डिक्लेरेशन या कंटेंशन किया जाना जरूरी है, अल्टीमेशन दिया जाना जरूरी है। बट यदि आप इसके संबंध में देखेंगे तो सेकंड हे कन्वेंशन जो है 1907 में जो आई थी, दैट लेड डाउन सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द ओपनिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज। जहां पे हॉस्टाइल रिलेशन स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले आपको कुछ डिक्लेयर किया जाना जरूरी है कि वहां पे हम देशों के बीच में वार होने वाली है। तो सेकंड हे कन्वेंशन हैज मेड सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द वार। एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स टुक प्लेस विदाउट एनी प्रायर वार्निंग ऑफ द डिक्लेरेशन। इसके बाद बहुत सारे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हुए थे जहां पर कोई प्रायर डिक्लेरेशन नहीं की गई थी। इसके लिए आप एग्जांपल भी ले सकते हैं जो आपके देखने को मिलता है, दैट इज द साउथ कोरिया वाज अटैक्ड बाय द नॉर्थ कोरिया इन 1950 विदाउट एनी प्रायर डिक्लेरेशन। सेकंड एग्जांपल, देयर इज इंडिया वाज अटैक्ड बाय पाकिस्तान इन 1962 विदाउट एनी प्रायर डिक्लेरेशन। तो आपने देखा कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था और वो भी बिना किसी प्रायर डिक्लेरेशन के। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक किया था 1950 के अंदर, वहां भी कोई प्रायर डिक्लेरेशन नहीं की गई थी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो आपकी जो सेकंड यहाँ पे जो वो आई थी यूनाइटेड नेशन का जो क्रिएशन हुआ था उसके बाद भी ऐसे आपको चांसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे कोई वार्निंग या डिक्लेरेशन नहीं की गई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वार। तो इस तरह से आप देखेंगे देयर आर मेनी स्टेट्स दैट डोंट मेक एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वार। आप जनरली जो कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जो वार को शुरू करने से पहले कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं करते आज भी, और इसके पीछे भी कई रीजन देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं करते? दैट इज नंबर 1, स्टेट्स वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ सरप्राइज अटैक। स्टेट्स ये चाहते हैं कि वो अचानक जब हमला करेगी तो उससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द वार। द स्टेट्स ट्राई टू इवेट द प्रोविजंस of the collective sanction that is laid down by United Nations Charter। यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा कुछ कलेक्टिव सैंक्शंस दी गई है जिनका पालन करना पड़ता है। यदि वो पावर को डिक्लेयर करेंगे नेचुरली वो उनको उसका पालन करना पड़ेगा, और वो उन रूल्स को उन जो सैंक्शंस है उनको इवेट करना चाहती है। तो इसलिए वो राज्य क्या करते हैं, उन्हें डिक्लेयर नहीं करते वार को। एंड आल्सो द स्टेट्स बाय डिक्लेरेशन ऑफ द वार ट्राई टू इवेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वार। ज्यादातर जो स्टेट्स होते हैं वो वार को डिक्लेयर करने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि वो उसके परिणामों से बचना चाहते हैं। कौन से परिणाम? जैसे कि वार क्राइम्स। जब वार डिक्लेयर होगा नेचुरली तो उसके अंदर वो वार क्राइम्स नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे वो उनसे बचना चाहते हैं। तो दीज आर द सर्टेन रीजंस ड्यू टू विच वेरियस स्टेट्स डोंट मेक एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वार। ये कुछ ऐसे रीजन है जो ये बताते हैं कि जहां पे फॉर्मल डिक्लेरेशन जानबूझ के नहीं की जाती। If we talk about the legal regulations of the war was recognized as a legal act from the ancient period। यदि आप देखें पुराने जमाने में जब आप उसमें जाएंगे हिस्टोरिकल पीरियड में तो वहां पे भी वार को एक लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई थी। एंड वार कुड बी रिजोर्टेड एज ए मीन ऑफ सेल्फ हेल्प और द सेल्फ डिफेंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जब भी कोई झगड़ा उत्पन्न होता था दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये कहा जाता था कि वार भी एक मेथड है। पहले तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से उस झगड़े को निपटाना चाहिए। यदि वो शांतिपूर्ण तरीके से झगड़े को निपटाना संभव नहीं हो पाता तो वहां पे वार भी एक ऑप्शन खुला रहता है, that may be resorted as a mean of self-help, that is an ultimate mean for the settlement of the international dispute। If we talk about the term Grotius, according to Grotius, war could be resorted provided the right of others are not infringed। जब वार शुरू हो जाता तो वहां पे एक के द्वारा दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली द यूज ऑफ फोर्स
which doesn't violate the rights of the others is not unjust. नेचुरली कि युद्ध हो रहा है, परंतु वहां पे जो व्यक्ति जो युद्ध के अंदर शामिल नहीं है, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, यदि नियमों का पालन किया जा रहा है, तो वो जो वार है वो अनजस्ट कभी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट विल नॉट बी अनजस्ट। इट इज टोल्ड बाय प्रोफेसर ग्रोसियस। इफ वी टॉक अबाउट द लॉज ऑफ वार, यदि हम लॉज ऑफ वार की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, तो वार के संबंध में जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेलिग्रेंट कंट्रीज होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वार इज रिजोर्टेड विद द पर्पज ऑफ एम्पावरिंग द एनिमी। However, the belligerents don't possess ultimate power to achieve the above purpose, and certain rules are required to be followed by them during the time of war. कुछ नियम ऐसे बताए गए जिनका उन्हें पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करें, वो ऐसा नहीं कर सकते। And according to Professor Stark, laws of war consist of the limited set of international law, within which the force required to empower the enemy may be used. जैसा कि मैंने बोला, प्रोफेसर स्टार्के जी ने ये कहा था कि जब भी हम लॉज ऑफ वार की बात करते हैं, वार संबंधी नियमों की बात करते हैं, तो इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए गए हैं, जहां पे भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर उनको पालन करना पड़ता है जब भी कोई वार की वार की कंडीशन आती है। और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वो अपनी जो शत्रु होता है वो अपने आप को एम्पावर कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द हेग कन्वेंशन, that is also stipulated that rights of the belligerents to adopt the means of injury the enemy is not unlimited। वहां पे जो राइट, मतलब जो उसको ऑप्शन दिया गया है बेलिगेंट कंट्रीज को वार को रिजोर्ट करने का, वो अनलिमिटेड नहीं है। वहां पे उसके संबंध में उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। दिस मीन्स रूल्स आर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो रूल बनाए गए वार के संबंध में, ये मानवीय आधारों पर बनाए गए हैं। तो दीज रूल्स आर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टू अवॉइड द बार्बरिज्म एंड द ब्रूटलिटी। वहां पे बार्बरिज्म, निर्दयता जो हद तक बढ़ सकती है, उसको अवॉइड करने के पर्पज से कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन युद्ध के समय में बेलिग्रेंट कंट्रीज को करना पड़ता है। तो देयर आर द सर्टेन रूल्स ऑफ वार, देयर आर द सर्टेन लॉज ऑफ वार। दीज आर द सर्टेन रूल्स व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द थ्री हेड्स: लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर, लॉज ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर एंड द लॉज ऑफ एरियल वॉरफेयर। इफ वी टॉक अबाउट द लॉज रिलेटिंग टू लैंड वॉरफेयर, देयर आर द सर्टेन रूल्स कंसर्निंग द लैंड वॉरफेयर दैट इज लेड डाउन बाय हेग कन्वेंशन। लैंड वॉरफेयर से संबंधित जो नियम है उनको हेग कन्वेंशन के जरिए बताया गया था। एंड विच डिजायर टू डेमिनिश द इविल ऑफ द वार, जिसका मेन पर्पज क्या था? इविल ऑफ वार को डेमिनिश करना। एंड थ्रू द जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1864 इट वाज रैटिफाइड, इसको रैटिफाई भी किया गया था। इफ वी टॉक अबाउट द लॉज रिलेटिंग टू वार, लैंड वॉरफेयर, दीज आर डिफाइंड इन डिफरेंट हेड्स। इनको अलग अलग हेड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हेड, दैट इज डिफाइनिंग द कॉम्पिटेंस एंड द नॉन कॉम्पिटेंस। जो कॉम्पिटेंस या नॉन कॉम्पिटेंस की कैटेगरी में इसको डिवाइड करता है रूल्स को। कौन कौन से हो सकते हैं? कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ कि इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंस, जनरली द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज रेगुलेटेड बाय द म्युनिसिपल लॉ। यदि हम कॉम्पिटेंस से की कंडीशन के बारे में बात करते हैं या आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो म्युनिसिपल लॉ के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता क्या है? कॉम्पिटेंट मीन्स अ पर्सन और द नेशन engaged in fighting during the war as a member of armed forces। ऐसा व्यक्ति या ऐसा नेशन जो फाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय में फाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व है और वो आर्म फोर्सेस का मेंबर है, दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस के संबंध में और नॉन कॉम्पिटेंस के संबंध में नियमों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। दिस मीन्स इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन टू सर्टेन पर्सन्स। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो आपके कुछ पर्सन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज पर हेग कन्वेंशन इट हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉम्पिटेंस एंड द नॉन कॉम्पिटेंस। यहाँ पे कॉम्पिटेंस और नॉन कॉम्पिटेंस को जो नियम है, संबंधित नियम है, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। Here the word competence means the member enrolled in regular forces in the navy, army or the air forces having the specific regiment number। ऐसे मेंबर जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं, एयर फोर्सेस के मेंबर भी हो सकते हैं, आर्म फोर्सेस के मेंबर भी हो सकते हैं, आर्मी के भी हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं। ऐसे मेंबर जो इन फोर्सेस से संबंधित है और जिनको एक स्पेसिफिक रेजिमेंट नंबर दिया गया है, दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंस। उनको कॉम्पिटेंस के नाम से जाना जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द रूल्स रिलेटिंग टू द कॉम्पिटेंस, एनी वायलेंस मे बी अप्लाइड अगेंस्ट द कॉम्पिटेंस। जब भी हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो वहां पे उन कॉम्पिटेंस के संबंध में वायलेंस अप्लाई की जा सकती है बेलिगेंट कंट्री के द्वारा, so that they can no longer take part in the fighting, while the non-combatants, यदि हम नॉन कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, they are excluded from the application of the forces
since they don't any take part in the armed contention. भाई जो नॉन कम्बेटेंट्स होते हैं उनके संबंध में जो नियम होते हैं वो बिल्कुल अलग बनाए गए हैं। उनको वहाँ पे फोर्सेस के संबंध में जो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की बात करते हैं तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर नहीं है, इवन वो युद्ध में भाग भी नहीं ले रहे हैं। एंड एवरी कम्बेटेंट मे बी किल्ड और वाउंडेड वेदर इज प्राइवेट सोल्जर और देन ऑफिसर। भाई कोई भी कम्बेटेंट्स यदि वो आर्म फोर्सेस का मेंबर है, चाहे वो प्राइवेट का हो या फिर वो कोई ऑफिसर हो, वहाँ पे उसके संबंध में फोर्स का पूरा यूज किया जा सकता है। एंड दे प्रोवाइडेड ही इज विलिंग टू फाइट। भाई यदि वो लड़ रहा है या लड़ने के लिए योग्य है या फिर उसके अंदर वो कैप्चर का रजिस्ट कर रहा है, यदि वो उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ पूरी तरह से फोर्स का यूज किया जा सकता है, उसको मारा भी जा सकता है। एंड दस द कम्बेटेंट्स हु आर डिजायरेबल टू सी हु आर डिसेबल्ड बाय द सिकनेस, ऐसे कम्बेटेंट्स यदि वो किसी वजह से डिसेबल हो जाते हैं, सिकनेस की वजह से या वाउंड की वजह से, दे मस्ट नॉट बी किल्ड, दे मे नॉट बी किल्ड। ये कहा जाता है कि उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। आल्सो द कम्बेटेंट्स हु डोंट रजिस्ट द बीइंग, जो उसका कहीं ना कहीं विरोध नहीं करते हैं, ऐसे कम्बेटेंट जो उसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दे नाइदर बी किल्ड नॉर बी बाउंडेड, ना तो उनको मारा जाना चाहिए ना ही उनको घायल किया जाना चाहिए। आल्सो द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज विदाउट बीइंग कम्बेटेंट्स, कई बार ऐसे मेंबर भी होते हैं जो आर्म फोर्सेज के मेंबर नहीं है, फिर भी वो उसके अंदर युद्ध के अंदर भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन दे मस्ट आल्सो बी अटैक्ड। उनको भी डायरेक्टली उनके ऊपर आप देखेंगे कि यदि वो आर्म फोर्सेस के मेंबर नहीं हो, फिर भी वो यदि युद्ध के अंदर भाग ले रहे हैं, तो उनको कम्बेटेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट द अदर मेंबर्स हु आर indirectly the members of the armed forces but they are not taking part in the war, यदि वो वार के अंदर युद्ध के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं, such as military officers, doctors, engineers, advocates, cooks, barbers, they are not directly attacked or killed or wounded, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स कंसर्निंग द कम्बेटेंट्स एंड नॉन कम्बेटेंट्स। यहाँ पे कम्बेटेंट्स और नॉन कम्बेटेंट्स के संबंध में रूल्स को डिवाइड किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड रूल दैट इज रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ बाउंडेड एंड सिक मेंबर्स, यदि हम सेकंड रूल की बात करते हैं तो बाउंडेड या सिक मेंबर से संबंधित है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बाउंडेड या सिक मेंबर्स होते हैं उनके संबंध में भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वो कौन से नियम बनाए गए हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि इंजर्ड सोल्जर्स आर नॉट ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी सोल्जर। जो इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं, जो युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनको ऑर्डिनरी सोल्जर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। If we talk about the rules regarding the injured soldiers, they were formulated by the first by the convention for the amelioration of the condition of the soldiers wounded in armies in the field. This is known as Geneva Convention. तो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर इंजर्ड सोल्जर से संबंधित भी कुछ नियम बनाए गए थे, बट दे प्रोवाइडेड दैट जिनेवा कन्वेंशन वाज रिवाइज्ड बाय द सेकंड जिनेवा कन्वेंशन। इसी जिनेवा कन्वेंशन को जो 1864 में आई थी, उसी को सेकंड जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, उसको उसके द्वारा रिवाइज कर दिया गया था। एज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसे कि आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस दौरान देयर वर मैनी रूल्स विच वर फ्रिक्वेंटली वायलेटेड, बहुत सारे ऐसे नियम थे जिनका वायलेशन लगातार किया गया था। एंड इन 1929 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जिनेवा। 1929 के अंदर जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इन रूल्स को रिवाइव किया गया, और इन्हीं रूल्स को रिवाइव करके ये कहा गया there must be certain rules that must be based on humanity। यहाँ पे ह्यूमैनिटी के आधार पर जो मेंबर्स होते हैं, जो वाउंडेड या सिक मेंबर्स होते हैं, उनके संबंध में भी कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। दिस मीन्स इट वाज हेल्ड एट कि a convention was concluded at which is commonly called as Geneva Convention, the rules relating to wounded and the sick members that must be treated humanity। ऐसे मेंबर्स को ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी अटैक्ड, उनको अटैक नहीं किया जाना चाहिए। एंड दिस कन्वेंशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द सिक एंड वाउंडेड पर्सन्स। इसका मतलब जो सिक और या वाउंडेड पर्सन्स होते हैं उनको भी क्या बताइए कि उनको भी प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। हु आर द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज एंड द मेन प्रोविजन फॉर दिस कन्वेंशन आर दैट द सिक एंड वाउंडेड पर्सन्स ऑफ द आर्म फोर्सेज मस्ट बी रिस्पेक्टेड। भाई ऐसे मेंबर जो सिक या वाउंडेड है उनको भी रिस्पेक्ट किया जाना जरूरी है। Also the combatants who don't resist to being member of the prisoner of war may neither be killed nor wounded. Also the individuals belonging to the armed forces without being combatants, such as military doctors, engineers, advocates, cooks, barbers, etc. These are not directly attacked or killed or wounded if they are not the part of war.
दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन वार। यदि वो वार में भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसे मेंबर जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कुक वगैरह हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, यदि वो युद्ध में भाग ले रहे हैं, नेचुरली कि उनको कम्बेटेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द कम्बेटेंट्स एंड द नॉन कम्बेटेंट्स। तो यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं कम्बेटेंट्स के ऊपर कौन से रूल अप्लाई होंगे और दूसरा नॉन कम्बेटेंट्स के ऊपर कौन से रूल अप्लाई होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड एंड द सिक मेंबर्स। सेकंड रूल इज सेइंग अबाउट जो वाउंडेड या सिक मेंबर्स होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द सिक एंड वाउंडेड मेंबर्स, इंजर्ड सोल्जर्स आर नॉट ट्रीटेड लाइक द ऑर्डिनरी सोल्जर्स। ये कहा जाता है कि जो घायल हुए जो सिपाही होते हैं उनको ऑर्डिनरी सोल्जर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवीयता के आधार पर। रूल्स रिगार्डिंग द इंजर्ड सोल्जर्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द कन्वेंशन। यहाँ पे जो रूल्स थे इससे संबंधित, जो इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं उनसे संबंधित कुछ रूल जिनेवा कन्वेंशन के अंदर बनाए गए थे। दे वर मेड बाय द जिनेवा कन्वेंशन इन 1864, बट द रूल्स प्रोवाइडेड बाय द जिनेवा कन्वेंशन विच वाज रिवाइज्ड। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो रूल बनाए गए थे इनको रिवाइज किया गया था बाय द सेकंड जिनेवा कन्वेंशन इन 1906। 1906 में सेकंड जिनेवा कन्वेंशन आई थी, जिसके अंदर 1964 में जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा जो रूल बनाए गए थे उनको रिवाइज किया गया था। ऐसा क्यों कहा किया गया था? एज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार दीज रूल्स वर फ्रिक्वेंटली वायलेटेड। ये जो आपकी जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो रूल बनाए गए थे फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, उनका फ्रिक्वेंटली वायलेशन किया गया था उसके दौरान, जिसकी वजह से इसी रूल्स को सेकंड जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा रिवाइज कर दिया गया। एंड आफ्टर द इन 1929, यदि इसके बाद आप देखेंगे 1929 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर, विच रिजल्टेड इन द कन्वेंशन फॉर द एम्बुलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ वाउंडेड एंड सिक मेंबर्स इन द आर्मी। जो वाउंडेड सिक मेंबर्स होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उनके संबंध में एक कन्वेंशन लाई गई थी। बट अगेन द आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बाद आप देखेंगे द्वारा जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945 के दौरान, उस दौरान भी ये देखेंगे नेसेसिटी फॉर द एक्सपेंशन एंड द रिवीजन ऑफ द कन्वेंशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। ये जरूरत पड़ी थी कि वहां पे इस कन्वेंशन को रिकॉग्नाइज, दोबारा इसको रिवाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान भी कुछ रूल ऐसे थे जो मानवीयता के आधार पर उनको मतलब नहीं माना गया था और उनको वायलेशन किया गया था। एंड ड्यू टू विच दिस कन्वेंशन वाज फर्दर रिवाइज्ड which was further concluded in 12 अगस्त 1949। 12 अगस्त 1949 को दोबारा एक कन्वेंशन हुई जिसको बाद में कंक्लूड किया गया, विच इज जनरली नोन एज जिनेवा कन्वेंशन। इसको भी जिनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया था, जिनेवा कन्वेंशन फॉर द एम्बुलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ वाउंडेड एंड सिक इन द आर्म फोर्सेज इन द फील्ड। एंड दिस कन्वेंशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द सिक एंड वाउंडेड पर्सन्स। ये जो कन्वेंशन थी इसके अंदर जो वाउंडेड या सिक पर्सन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करने की बात की गई थी। हु आर द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज, ये कहा गया था कि चाहे भले ही वो आर्म फोर्सेज के मेंबर हैं, यदि वो लड़ाई के दौरान जब वार हो रहा है उस दौरान यदि वो वाउंडेड या सिक हैं तो उनको प्रॉपर केयर दी जानी चाहिए। दे मस्ट नॉट बी ट्रीटेड लाइक द ऑर्डिनरी सोल्जर्स। ये कहा गया था कि उनको ऑर्डिनरी सोल्जर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। एंड द मेन प्रोविजन फॉर दिस कन्वेंशन आर सच एज, यहाँ पे इस कन्वेंशन से संबंधित यदि आप कुछ नियमों की बात करते हैं तो कुछ नियम इसके संबंध में बताए गए हैं। दैट मस्ट प्रोवाइड द केयर एंड प्रोटेक्शन बाय द बेलीग्रेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी ऐसे मेंबर जो वाउंडेड या सिक होते हैं उनको प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो दीज आर द देयर आर द सर्टेन रूल्स। कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं? नंबर 1, उन्होंने क्या कहा कि मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू दीज सिक एंड वाउंडेड मेंबर्स। ये जो सिक या वाउंडेड मेंबर्स होते हैं इनको उनके संबंध में एक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। दे मस्ट बी मेडिकल सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिलेटिंग टू द वाउंडेड एंड सिक मेंबर्स। कि ऐसे मेंबर जो वाउंडेड या सिक होते हैं यूथ के दौरान उनको मेडिकल फैसिलिटीज के प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज की जो वो है मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बेलीग्रेंट्स। उनको बेलीग्रेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए और रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पहला नियम क्या कहता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड केयर। उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। सो एनी वायलेशन टू देयर पर्सन और द अटेम्प्ट अपॉन देयर लाइव्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की अहिंसा का प्रयोग ना किया जाए, उसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज एंड वहाँ पे कुछ उससे संबंधित जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एस्टेब्लिश की जानी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू द वाउंडेड एंड सिक मेंबर्स बाय द बेलीग्रेंट्स।
थर्ड रूल से दैट आल्सो द पर्सन एंगेज्ड इन दीज मेडिकल यूनिट्स, ऐसे लोग जो इन मेडिकल यूनिट्स के अंदर लगाए गए हैं, जैसे कि आप बताते हैं डॉक्टर है, नर्सिस हैं, जो भी इनके अंदर मेंबर लगाए गए हैं, दे मस्ट आल्सो बी केयर्ड, उनको एंड रिस्पेक्टेड, उनको भी केयर की जानी चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, एंड दे मस्ट आल्सो बी प्रोटेक्टेड, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट रूल सेज दैट आल्सो द एयरक्राफ्ट्स यूज्ड एज ए मीन ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट जिनका मेडिकल ट्रांसपोर्ट के रूप में उसका यूज किया जा रहा है, दे मस्ट आल्सो इंजॉय द प्रोटेक्शन, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट रूल सेज दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंगेज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक एंड वाउंडेड पर्सन्स मस्ट आल्सो बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, ऐसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो कहीं ना कहीं सिक या वाउंडेड पर्सन्स को ट्रांसपोर्टेशन करने का प्रयोग के लिए यूज की जा रही है, उनको भी रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट रूल से दैट दैट बॉडी शैल नॉट बी डिस्ग्रेसफुली ट्रीटेड, यदि कोई सोल्जर यदि मर जाता है फील्ड के अंदर, तो उसको डिस्ग्रेसफुली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए उसकी डेड बॉडी को। एंड दे मस्ट नॉट बी म्यूटिलेटेड, उनको म्यूटिलेटेड नहीं किया जाना चाहिए। एंड दे शैल बी कलेक्टेड एंड बरीड ऑन द बैटल फील्ड बाय द विक्टर, उनको प्रॉपर मतलब सम्मान देते हुए उनको मतलब बरीड किया जाना चाहिए, उनको कलेक्ट किया जाना चाहिए, ये नहीं कि उनके साथ गलत अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। And the next rule says that name of the sick and wounded persons and the dead persons should be communicated by the belly grant, belly grant के द्वारा सिक वाउंडेड या जो डेड पर्सन्स होते हैं उनके नाम दिए जाने चाहिए, उनको बताए जाने चाहिए, उनको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द वाउंडेड एंड सिक पर्सन्स इन द फील्ड, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भले ही कॉम्बेटेंट क्यों ना हो, यदि वो वाउंडेड या सिक होता तो उसके संबंध में ये सारे नियम अपनाए जाने चाहिए। एंड द नेक्स्ट रूल इज रिलेटिंग टू द सिक ऑफ सिविल ट्रीटमेंट ऑफ द सिविलियंस पर्सन्स एट द टाइम ऑफ वार, ऐसे लोग जो सिविलियन है वहाँ के नागरिक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इससे संबंधित नेक्स्ट नियम बताए गए हैं। यदि हम सिविलियंस की बात करते हैं, सिविलियंस किसे कहते हैं? सिविलियंस आर द पर्सन्स हु आर रिजाइडिंग, हु आर द ऑर्डिनरी पर्सन्स ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के वो जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनको सिविलियंस कहा जाता है, जो आर्म फोर्सेस के मेंबर नहीं है। दे मस्ट आल्सो नीड प्रोटेक्शन, क्योंकि ऐसे मेंबर जो वहाँ के नागरिक है नेचुरली, तो उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। दिस मीन्स प्रोटेक्शन टू द सिविलियंस इज आल्सो नेसेसरी, जो सिविलियन पर्सन्स होते हैं उनको इन द टाइम ऑफ वार प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ऑन 12 अगस्त 1949 जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन पर्सन्स इन टाइम्स ऑफ वार वाज आल्सो अडॉप्टेड, वहाँ पे जब आप 12 अगस्त 1949 के दिन जो जेनेवा कन्वेंशन हुई थी, उसके अंदर सिविलियन पर्सन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी वार के समय जो सिविलियन पर्सन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के संबंध में कुछ नियमों को बताया गया था। कौन कौन से नियम थे? नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ द एलाइन एनिमीज इन द बेलिग्रेंट टेरिटरी, जो बेलिग्रेंट टेरिटरी होती है उसके अंदर जो एलाइन एनिमीज है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो ट्रीटमेंट ऑफ एलाइन एनिमीज इन द बेलिग्रेंट टेरिटरी उसके बारे में बताया गया था। सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ द वाउंडेड एंड सिक सिविलियंस, ऐसे सिविलियन जो ऐसे नागरिक जो वो युद्ध के दौरान यदि वो घायल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। थर्ड नियम किसके संबंध में था? ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरनीज, इंटरनीज के संबंध में एक नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पे इंटरनीज के संबंध में जो नियम बताए गए थे, इंटरनीज मतलब ए पर्सन हु हैज बीन पुट इन प्रिजन फॉर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रीजन्स, ऐसे पर्सन जो किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री रीजन्स की वजह से जिन्हें जेल में डाला गया है युद्ध के दौरान, उन्हें हम इंटरनीज कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इंटरनीज होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, तो वहाँ पे उसके संबंध में भी नियम जेनेवा कन्वेंशन के अंदर बनाए गए हैं। और ये कहा गया है कि दीज रूल्स इंक्लूड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्लेसेस ऑफ द इंटरनीज, फूड, क्लोथिंग, हाइजीन कंडीशन, मतलब वहाँ पे जितने भी इंटरनीज होते हैं जिनको वहाँ पे जेल के अंदर डाल दिया जाता है वार के दौरान, उनको मतलब वहाँ पे इंटरमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, फूड प्रोवाइड करना चाहिए, क्लोथिंग प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, हाइजीन और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। दिस मीन्स एवरी फैसिलिटीज विच आर असेंशियल टू लाइफ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू दीज पर्सन्स, इंटरनीज को वो मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और दीज रूल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी के आधार पर ये कुछ नियम बनाए गए हैं। If we talk about the treatment of the sick and wounded civilians in times of war, the convention relating to this their protection was also accepted. इसके संबंध में भी एक कन्वेंशन हुई थी। फॉर दिस पार्टी टू द आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एस्टेब्लिश इन देयर टेरिटरीज, इसके लिए ये कहा गया था कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, पार्टीज होती है, वो अपनी टेरिटरी के अंदर हॉस्पिटल या सेफ्टी जोन बना सकती हैं। और जिसका मेन पर्पज यही होता है कि यदि युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है, वो किसी भी पार्टी से मतलब कोई से भी देश से संबंधित क्यों ना हो, तो वो एक न्यूट्रल जोन कहलाएगा और वहाँ पे उन वाउंडेड और सिक पर्सन्स को रखा जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी।
and the protection of the civilian population from the effect of war are also provided by the Geneva Convention. Geneva Convention के अंदर जितने भी सिविलियन पॉपुलेशन है जिनका कहीं ना कहीं वार के द्वारा जिसको अफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के प्रावधान बनाए गए हैं। और ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं वार के दौरान कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, दे मस्ट आल्सो बी रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड केयर। तो ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट भी किया जाना, उनकी प्रॉपर केयर भी करवाई जानी चाहिए। एंड दे मस्ट मे नॉट बी ऑब्जेक्ट टू अटैक, उनको उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया करना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द सिविलियंस, सिविलियन के संबंध में भी नियम बनाए गए हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूल्स दैट इज रिलेटिंग टू द प्रिजनर्स ऑफ वार, जो प्रिजनर्स ऑफ वार से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं प्रिजनर्स ऑफ वार की, प्रिजनर्स ऑफ वार का मतलब क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट द प्रिजनर्स ऑफ वार दैट इज द स्टेटस विच इज गिवन टू अ पर्सन कैप्चर्ड बाय बेलिग्रेंट। ऐसे व्यक्ति जो बेलिग्रेंट स्टेट के द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, दे आर नोन एज प्रिजनर्स ऑफ वार। कि भी ऐसे व्यक्तियों को जिनको युद्ध के दौरान कैद कर लिया जाता है बेलिगेंट कंट्री के द्वारा, उनको प्रिजनर्स ऑफ वार का नाम दिया जाता है। और जिनेवा कन्वेंशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वार वाज आल्सो एक्सेप्टेड ऑन 12 अगस्त 1949। 12 अगस्त 1949 को प्रिजनर्स ऑफ वार के ट्रीटमेंट के संबंध में भी कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी। और जिसके अंदर ये कहा गया था कि कुछ कैटेगरी के जो पर्सन हैं who have fallen into the prisoners of war, who have fallen into the power of the enemy shall be called as prisoners of war। और ऐसे व्यक्तियों को अंदर यदि आप देखेंगे जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं, या फिर ऐसे मेंबर जो आर्म फोर्सेज के मेंबर नहीं है परंतु वो वॉलंटियर कोर्प्स के मेंबर हैं या मिलिटेंट्स हैं, तो ऐसे मेंबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। दे मस्ट ड्यूरिंग द वार दे मे अक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार। भी ऐसे जब वार होती है तो नेचुरली उनको प्रिजनर्स ऑफ वार की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड दी मेंबर्स ऑफ द अदर मिलिट्री ऑफिस, अदर मिलिट्री या अदर वॉलंटरी कोर्प्स मे आल्सो बी कंसिडर अंडर द प्रिजनर्स ऑफ वार। बाकी जो फोर्सेस के मेंबर होते हैं, चाहे भले ही वो मतलब इरेगुलर गलत तरीके से मतलब इनडायरेक्ट तरीके से मेंबर हैं, तो वो भी प्रिजनर्स ऑफ वार हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? यदि इफ दे आर हैविंग कमांडर, इफ दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म, इफ दे आर कैरिंग आर्म्स, इफ दे आर ऑब्जर्विंग द लॉ एंड कस्टम्स ऑफ वार, नेचुरली तो वहाँ पे उनको एक तरह से प्रिजनर्स ऑफ वार माना जा सकता है, उनको भी कैद किया जा सकता है। एंड द नॉन कॉम्बेटेंट पर्सन्स, एग्जाम्पल द सिविलियंस ऑफ वार सच एज कॉन्ट्रैक्टर्स, कुक्स, बार्बर्स, इसके अलावा बाकी जो नॉन कॉम्बेटेंट मेंबर्स होते हैं, जो आप ये कह दोगे कि जैसे कि जो कॉम्बेटेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बार्बर्स हो गए, कुक हो गए, इंजीनियर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ऐसे व्यक्ति भी प्रिजनर्स ऑफ वार की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। दे में also दे अकम्पनी द आर्म यूनिट, क्योंकि वो आर्म यूनिट का कहीं ना कहीं अकम्पनी कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। आल्सो द मेंबर्स ऑफ द क्रू इंक्लूडिंग द पायलट, भी जो पायलट के वगैरह जो क्रू के मेंबर होते हैं, दे आर आल्सो बिकमिंग द प्रिजनर्स ऑफ वार, वो भी प्रिजनर्स ऑफ वार हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन हु टेक्स आर्म्स, यदि उस देश के उस जगह के जो नागरिक हैं, यदि वो अपने हाथों में हथियार लेके चलते हैं टू रजिस्ट द इन्वेडिंग फोर्सेज, इन्वेडिंग फोर्सेस को रजिस्ट करने के पर्पज से, तो ऐसी स्थिति में उनको भी प्रिजनर्स ऑफ वार बनाया जा सकता है। तो दीज आर द सर्टेन कैटेगरीज हु कैन बी द प्रिजनर्स ऑफ वार। ये वो कैटेगरी है जो प्रिजनर्स ऑफ वार की कैटेगरी में शामिल हो सकती है। तो इसके संबंध में जैसे मैंने आपको बताया 12 अगस्त 1949 को कन्वेंशन प्रोवाइड कराई गई थी, उसके बारे में कुछ नियम बनाए गए थे। तो ये आपने बताना था प्रिजनर्स ऑफ वार के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वार, इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वार। प्रिजनर्स ऑफ वार की जब हम बात करते हैं तो इसके संबंध में भी कई नियम बनाए गए हैं, और ये कहा जाता है जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, इनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, परंतु उसके संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम कौन कौन से बनाए गए हैं? फ्रॉम दे मस्ट बी, ये जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं, अंडर द इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रिजनर्स ऑफ वार फ्रॉम द पनिशमेंट फॉर देयर हॉस्टाइल एक्ट्स कमिटेड प्रायर टू द कैप्चर। यदि वो कैप्चर करने से पहले, उन्हें कैद करने से पहले जो उन्होंने हॉस्टाइल एक्ट किए थे, उनके संबंध में उन्हें पनिश नहीं किया जाना चाहिए। Once a prisoner is recognized as the prisoners of war, the captor state is not able to free to enforce its own municipal law। वहाँ पे जब एक व्यक्ति को प्रिजनर ऑफ वार बना दिया जाता है, मतलब स्टेट के द्वारा उसको कैद कर लिया जाता है, तो वहाँ पे वो अपने नियम नहीं चला सकते एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द इंटरनेशनल, जब तक कि वो नियम जो है वो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा उसको परमिशन ना दी जाए। इट्स हैंड्स आर टाइड इन मैनी वेज, उस कंट्री के जो हैंड्स है वो कई तरीके से उनको बांधे हुए हैं। वो ये कहा जाता है कि दे आर ऑब्लिगेटरी टू सर्टेन पॉजिटिव एक्शंस, उनको कुछ पॉजिटिव एक्शन जो इस रूल के अंदर बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उनको लेना होगा, उनको अडॉप्ट करना होगा। दिस मीन्स दे मस्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, मेडिकल फैसिलिटीज, फूड फैसिलिटीज एक्सेट्रा अदर मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द प्रिजनर्स ऑफ वार। भी ऐसे व्यक्ति जिनको प्रिजनर्स ऑफ वार बना लिया जाता है तो उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जानी चाहिए जो दैट इज एसेंशियल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, जो लाइफ को देने के लिए जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया प्रिजनर्स ऑफ वार के संबंध में।
इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कैप्चर स्टेट, यदि हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं कैप्चर स्टेट के, तो इनके जो कैप्चर स्टेट्स होते हैं उनको भी कुछ ना राइट्स और ड्यूटीज भी दी जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप प्रिजनर्स ऑफ वार की बात करते हैं तो दे आर गेटिंग द राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिजनर। जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, उनसे कुछ भी उगलवा सकते हैं। एंड दे आर हैविंग द पावर टू ट्रांसफर द प्रिजनर ऑफ वार फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वहां पे वो प्रिजनर ऑफ वार जिनको वो कैद करके लाए हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टेक द डिसिप्लिनरी मेजर्स, दे कैन टेक द डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द प्रिजनर्स ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार यदि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। एंड आल्सो द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन आल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दिस प्रिजनर्स ऑफ वार। ये तो प्रिजनर्स ऑफ वार है, इनके अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। एंड आल्सो द यूज ऑफ वेपन्स इज आल्सो अलाउड अगेंस्ट द प्रिजनर्स ऑफ वार। जो प्रिजनर्स ऑफ वार जो वार के दौरान जो प्रिजनर्स कैद कर लिए जाते हैं उनके प्रति वेपन्स का भी यूज किया जा सकता है। बट सच यूज ऑफ वेपन शैल बी प्रोसीडेड बाय वार्निंग। वहां पे उन वेपन्स का यूज करने से पहले उन्हें वार्निंग देनी चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी अनअप्रोप्रिएट। वो जो वेपन्स का यूज कर रहे हैं वो अनअप्रोप्रिएट अनप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। एंड आल्सो द कैप्टर स्टेट इज आल्सो हैविंग द पावर टू पनिश द प्रिजनर ऑफ वार। जो कैप्टर स्टेट होती है वो प्रिजनर ऑफ वार को पनिश करने का भी प्रावधान रखती है। उसके पास ये भी पावर है कि वो प्रिजनर ऑफ वार को क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। इवन द डेथ पेनल्टी में आल्सो बी इम्पोज्ड ऑन द प्रिजनर ऑफ वार। इवन डेथ पेनल्टी भी उन्हें दी जा सकती है। तो दीज आर द सर्टेन राइट विच आर गिवन टू द प्रिजनर्स ऑफ वार, जो के संबंध में कैप्टर स्टेट को दी गई है। ये वो राइट्स हैं जो कैप्टर स्टेट को दिए गए हैं प्रिजनर्स ऑफ वार के संबंध में। यदि हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ड्यूटी भी है जो प्रिजनर्स ऑफ वार के संबंध में अपनाई जानी चाहिए कैप्टर स्टेट के द्वारा। कौन कौन सी ड्यूटी हो सकती है कि ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वार मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली। उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, इक्वलिटी का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप कहेंगे कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, उनको क्वार्टर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। कैंटीन फैसिलिटीज में मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द प्रिजनर्स ऑफ वार। एंड डिटेनिंग पावर शैल बी बाउंड टू टेक ऑल द सैनिटरी मेजर्स। वहाँ पे जो कैंप वगैरह होते हैं उनके अंदर सैनिटरी मेजर्स अपनाए जाने चाहिए टू प्रिवेंट द एपिडेमिक्स वगैरह जो महामारी होती है उनको उनसे बचाने के लिए। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वार का भी प्रावधान रखा गया है। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटी दैट मस्ट बी इम्पोज्ड बाय द कैप्टर स्टेट फॉर द प्रिजनर्स ऑफ वार। तो इसके सामने कुछ आपको बताई गई है कि क्या क्या मतलब ड्यूटीज उसकी होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिजनर्स ऑफ वार। तो ये मैंने आपको बताया कि आज जो रूल्स रिलेटिंग टू द लैंड वारफेयर एज वेल एज प्रिजनर्स ऑफ वार किसे कहते हैं और प्रिजनर्स ऑफ वार के क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या ड्यूटीज हो सकती है, उनको कौन से नियम का पालन करना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। If you have any doubt, then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.